Hello students. Today again we are with the chapter number 2, Nationalism in India. It is your part 2 of this chapter. In previous lecture we have discussed about the how the nationalism spread in India, what is the role of Gandhi ji, and so many things. So let's start with this chapter. Again, I'm repeating the nationalism. It involves a strong identification of a group of the individual with the political um, entity definite to the nation's terms, that is a nations. जो भी हमारी identification होती है, यानी किसी भी person को किस किस कंट्री के नाम से जाना जाता है, इट्स नोन एज द नेशनलिज्म. आफ्टर दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी हैव डिस्कस इन द पार्ट 1 what was the circumstance happened with the after the first world war, and during the first world war many expenditures were there, forced recruitments were there, many taxes were increased, crop failures were there, epidemics were there. So many problems are faced by the Indians, which leads to the many movements. Now next we will discuss in the previous lectures the Khilafat and non-corporation movement, how the Hindu and Muslims fight together with this movement, non-corporation and Khilafat movement. Now Satyagraha. So in detail, I will explain the all topics in this lecture also. So first, as the nationalism in India, the what was the Rawlett Act? Rawlett Act क्या था? I will explain according to your book. और Rawlett Act के बारे में मैं आपको बता दूँ. So Rawlett Act was the impartial legislative council. एक impartial act था जो बहुत ही dominant था Indians के लिए. Under the Rawlett Act, the enormous powers had awarded to the governments to the suppress the political activities. जो भी लोग political activities करते थे, जो भी movement में participate करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा oppressive था. It also allowed to detentions to the political prisoner without the trial for 2 years. यानी कोई भी political leader है जो भी कोई movement में include है या struggle कर रहा है, उसे बिना कोई trial के 2 years के लिए जेल में डाला जा सकता है. Arrest Indian political leaders on the basis of डाउट, यहाँ तक कि किसी भी इंडियंस को डाउट, यानी अगर उनके पास कोई डाउट है, शक है, तो भी उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल. सो इट वाज द Rawlett Act. What was the role of the Rawlett Act in the non-corporation movement? Then next the next incident was happened, which was the जलियावाला बाग, 13 अप्रैल 99. ऑल नोज अबाउट दैट, सभी को पता है इसके बारे में. एंड लास्ट वाज द आफ्टर मैथ ऑफ द जलियावाला बाग मैसेजेस. और उसके बाद जो भी, सो दीज आर द बैकग्राउंड्स ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के पीछे इन सभी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा. So students, today's lecture I am starting with the Rawlett Act. What was the Rawlett Act, which I have briefly explained. The imbounded with the success, Gandhiji 1919 decided to launch the nationwide satyagraha against the proposed Rawlett. अब जब गांधी जी है, उन्होंने ये कोशिश की कि वो इन सभी ऑप्रेसिव जो थिंग्स थी विच वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स, उनके अगेंस्ट वो क्या करेंगे, जैसे Rawlett एक्ट जो था, उनके अगेंस्ट क्या करेंगे, वो सत्याग्रह है. दिस एक्ट हैड बीन द यूनिटली पास थ्रू द इम्पार्शियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड पोजिशंस ऑफ द इंडियन मेंबर. अब जो भी इम्पार्शियल का मतलब होता है अनफेयर, है ना. ये जो पास किया गया, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर से कुछ नहीं पूछा गया. इट गेव द गवर्नमेंट एनोमेरियस पावर टू द रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी उन्हें क्या कर दिया गया, दबाने की कोशिश की गई. इट गेव टू पॉलिटिकल नोमेरियस पावर टू द रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ टू डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर द 2 years. ये भी राइट है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट ये बन गया, दूसरा पॉइंट आपका रिटेंशन का बन गया. यहाँ पे नो मेरी इस पावर दिए कि विदाउट ट्रायल, यानी वो कि कोई लॉयर भी नहीं हायर कर सकते. महात्मा गांधी वांटेड to the non-violent civil disobedience against unjust law, which would start with the हड़ताल on 6 अप्रैल. और उन्होंने इसी के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया. सिविल डिसोबीडियंस यानी बिल्कुल ही कोई भी लॉ नहीं तोड़ना था उन्हें,
और ये इनजस्ट लॉ था क्योंकि यहाँ से फ्रीडम्स जो थी इट वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। सो 6 उन्होंने हड़ताल किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब क्या क्या चीज़ें हुई इसमें? द रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन द वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट टू द स्ट्राइक इन द रेलवे वर्कशॉप। देखिए, नाउ देयर आर द some things which were steps. There are some steps which were part of the this सत्याग्रह मूवमेंट। रैली, सबसे पहले रैलीज ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग सिटीज़ में। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए। रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन, शॉप्स बंद कर दी गई। अलार्म बाय द पॉपुलर upsurge and the secrets and the lines of the communication such as railway and the telegraphs would be disturbed। सारी जो भी कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू द क्लैम्प डाउन टू द नेशनलिस्ट। उन्होंने सभी को दबाने की पूरी कोशिश की। नेशनलिस्ट यानी होते हैं जो राष्ट्रवादी थे, जो सत्याग्रही थे। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, कई सारे लोकल लीडर्स को उठा लिया गया फ्रॉम अमृतसर। एंड महात्मा गांधी वाज बेयर फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन द अमृतसर फायर अपॉन द पीसफुली प्रोसेशन। और 10th अप्रैल को, देखो 6 अप्रैल से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ डेट्स याद रखनी है। 10 अप्रैल को क्या हो रहा है? पुलिस ने अमृतसर में जो पीसफुली प्रोसेशन जुलूस था उस पर फायर कर दी। प्रोवेक्ट वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, जिसके जिसके गुस्से से लोगों ने क्या किया? बैंक्स पर अटैक किया। पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस जो है ये उसके पार है। मार्शल लॉ, ना यहाँ पर आपको मार्शल लॉ जो है उसको बहुत अच्छे से देखना है। जनरल डायर टू कमांडेड द मार्शल लॉ, एक तरह का जिससे आर्टिकल 144 होता है कि आप गैदर नहीं हो सकते हैं ना एक जगह पर, ये सुना होगा आपने। उसी तरह मार्शल लॉ लगा हुआ था इसी चीज़ों को कंट्रोल करने में। 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 10 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ है। नाउ अबाउट द 13 अप्रैल। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और जस्ट 6, 10 और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो मैसेजेस है वो वहाँ पर इंसिडेंट हो गया। ऑन दैट डे द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड्स ऑफ द जलियांवाला बाग। उस दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर। कुछ लोग तो जो रॉलेक्ट एक्ट जो था उसकी रिप्रेस जो कर रही थी गवर्नमेंट, उसके लिए इकट्ठे हुए थे। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और उस कुछ लोग जो थे जो वुमेंस थे, चिल्ड्रंस थे, कई लोग बैसाखी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने। बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सिटी मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर अबाउट द मार्शल लॉ। कई सारे जो विलेजर्स थे उन्हें मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। दैट हैड बीन इम्पोज, जो उन पर लगाया गया था। डायर, जनरल डायर थे उस वक्त। एंटर इन द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, उन्होंने एंटर किया, एग्जिट्स के जितने भी रास्ते बंद कर दिए गए। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। ओपन फायरिंग के उन्होंने ऑर्डर्स दिए, बहुत सारे लोग मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट एज दिस डिक्लेयर लेटर was to produce to the moral effects to the create in the minds of the satyagrahis a feeling of terror and the awe। अब यहाँ पे बाद में ये चीज़ आई कि वो अपना टेरर दिखाना चाहते थे सत्याग्रहियों को कि वो उनसे डरे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। देन एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग, जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ स्प्रेड हुई, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियंस टाउन। नॉर्थ इंडिया में ये सारी चीज़ें पहुंची। देयर वॉर स्ट्राइक, कई जगहों पर स्ट्राइक हुई। क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया गया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूचुअल रिप्रेशंस, बहुत ही बुरी तरह से उन्हें रिप्रेस किया गया जहाँ पर भी लोग स्ट्रक कर रहे थे इसका विरोध। सीकिंग द ह्यूमिलेटेड एंड द टेररिस्ट पीपल, लोगों को बहुत ह्यूमिलेट किया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, यहाँ तक कि सत्याग्रही को फोर्स किया गया कि वो अपनी नाक को रगड़े ज़मीन पर उनके सामने। क्राउल ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पर वो रैंक कर चले। एंड डू सलाम एंड सल्यूट द ऑल साहिब, साहिब मीन्स ब्रिटिशर्स, और सभी ब्रिटिशर्स को वो क्या करें? सलाम करें, यानी उनका अपना
तरीका था जो बहुत डोमिनेट करा उन्होंने. पीपल वर फॉरगेट द पीपल एंड विलेजेस अराउंड द अजवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड. वहाँ पर भी कई सारे इंसिडेंट हुए. सीइंग वायलेंस स्प्रेड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट. अब जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो रहा है तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया. नेक्स्ट, while the roller satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly in cities and town. हालांकि सत्याग्रह मूवमेंट जो था बहुत ही वाइड स्प्रेड था, लेकिन अभी भी लिमिटेशन थी. कुछ ही सिटीज़ और टाउन में ये लोग अवेयर थे इसके बारे में. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट टू नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. अब महात्मा गांधी को लगा कि जो भी मूवमेंट करना है वो एक ब्रॉड बेस पे करना है जिसमें सारी कंट्री के लोग क्या हों, इन्वॉल्व हों. बट he was certain to no such movements could be organized without being the Hindu and Muslim close together. वो ये भी जानते थे कि कोई भी स्ट्रगल जब तक हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो जाते सक्सेस नहीं हो पाएगा. तो व्हाट वाज द नीड ऑफ द वुमेन, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी का यहाँ पर बात हुई है. ऑन द वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल was टेकन अप द खिलाफत इशू. मतलब खिलाफत इशू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन टर्की. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की डिफीट हुआ था. ऑटोमन टर्की जो था अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के. एंड देयर वर रूमर्स दैट द हार्श पीस ट्रीटी वाज अमंगेस्ट टू इम्पोज द ऑटोमन एम्पायर. उन पर फोर्स की गई स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ इस्लामिक वर्ड्स खलीफा टू डिटेन द खिलाफत temporal power. Khilafat committee was formed by the Bombay in 1919. मोहम्मद अली शौकत अली जो हैं दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है. इन्होंने डिस्कस किया महात्मा गांधी से, यूनाइट किया कि वो एक साथ काम करेंगे. देन महात्मा गांधी सॉ द अपॉर्चुनिटी टू बीइंग द अम्ब्रेला. उन्होंने कहा कि मूवमेंट किया जाए जिसमें दोनों ही कम्युनिटी एक साथ करें. एट द कैलकटा सेशन में सारा डिसाइड किया गया. कैलकटा सेशन कब हुआ है, 1920. याद रखेंगे कांग्रेस के सेशंस. इट वाज द as in the map work also. He convicted the leaders to need to the start non-corporation movement support to the khilafat as well as स्वराज. तो ये सारी अब नाउ व्हाई द नॉन कॉरपोरेशन, इसका नाम नॉन कॉरपोरेशन क्यों रखा गया. सो महात्मा गांधी हैज़ गिवन दिस टाइटल टू दिस मूवमेंट. इट वाज लॉजिकल दैट इन हिज फेमस बुक, उन्होंने अपनी फेमस बुक में बताया यहाँ पर हिंद स्वराज 1919, महात्मा डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वाज स्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस. अब क्योंकि यहाँ पर कॉरपोरेशन किया, वो यहाँ पर क्यों स्टेब्लिश है, हाउ दे कम हियर, जस्ट बिकॉज वी हैव कॉपरेटेड विद द ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमने उनके साथ क्या किया, कॉपरेट किया. एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ द कॉरपोरेशन. और वो स्टिल यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं किस लिए, कि यहाँ पर लोगों का कॉरपोरेशन उन्हें मिल रहा है. इफ इंडियन रिफ्यूज टू अ कॉरपोरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलास विद इन द ईयर एंड स्वराज्य वुड कम. ना पे लॉजिक ये दिया कि अगर इंडियंस जो हैं उन्हें कोई कॉरपोरेशन नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, तो वो अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे और हमारा स्वराज्य यहाँ पर अब वापस आ जाएगा. सो इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, कि कोई भी इंडियन ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह का कॉरपोरेशन नहीं करेगा. फाइन. सो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्यों दिया गया. नाउ हाउ कुड नॉन कॉरपोरेशन बिकम द मूवमेंट, किस तरह से ये मूवमेंट बना. गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज. इट शुड बिगन विद द सरेंडर्स ऑफ द टाइटल्स दैट गिवन बाय गवर्नमेंट. अब उन्होंने ये कहा कि जो भी टाइटल्स दिए, ऑनर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, उन्हें वो क्या करें, सरेंडर करें इंडियंस के लिए. एंड द बायकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज, जितनी भी सिविल सर्विसेज है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उनका बायकॉट करें. आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, इन सब का क्या करें, वो बायकॉट. बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना या फिर उन चीज़ों को यूज़ ना करना या उन चीज़ों को छोड़ देना. देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशंस ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड थ्रू द समर इन 1920. महात्मा गांधी, शौकत अली एंड द एक्सटेंसिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट. अब यहाँ पे मोहम्मद अली, शौकत अली, सभी को इसका काफ़ी सारा क्या मिला, सपोर्ट मिला. सो देन मैनी विद इन द कांग्रेस were however concerned about the
प्रपोजल्स, कई सारे जो प्रपोजल्स दिए गए इसके लिए, दे वर reluctant to boycott and council elections scheduled for the November 1920. They feared that the movements might to be popular violence. उनको ये डर भी था कि violence हो सकता है. In the method of between September December there were intense tussles within the Congress for a while. There was seems to meeting point between the supporters and the opponents of the movements. Finally, the Congress sessions at Nagpur in December 1920, the compromise were taken out and non-corporation movement was adopted. यहाँ पे non-corporation कब start हुआ है? 1920. So it is all about today. In next lecture, I will explain the next topic. Thank you and have a nice day.